Hi friends, good afternoon. Today we are starting next education series, which is GST payment in GST regime. So important would be how to make GST payment in GST regime. As we all know that 17 indirect taxes merging into one basket, GST. So we have to make payment, and we all are aware we are into dual concurrent GST model. In this particular model, both center and state going to levy taxes simultaneously, concurrently on supply of goods or supply of services. Whenever there is a transaction intra-state, supply of goods or services, CGST and SGST applicable. If this transaction is happening in union territory with no legislature, then CGST and UTGST applicable. And when transaction happen interstate from one state to another state, IGST applicable. This is how we are going to determine our liability in GST regime. But how to make payment of GST is going to be important. So before making GST payment, it would be important what is the net liability to be paid. So my outward supply will create my e-liability, output liability. And output liability can be IGST, CGST, SGST, UTGST and compensation cess. And my corresponding input tax credit which I have paid on my inward supply purchase. Then again I will have e-credit ledger. E-credit ledger pertaining to IGST, CGST, SGST, UTGST and compensation cess. So what happened? My e-liability and then I got e-credit. So I can adjust my e-credit towards payment of my e-liability and net whatever left out in my e-liability to be paid by e-cash ledger. And again e-cash ledger would be pertaining to IGST, CGST, SGST, UTGST and compensation cess. So it's very important. First, we have to determine liability. Then we have to check our corresponding input tax credit. We can net off our output liability with the corresponding credit available. Whatever left out balance portion to be paid in cash. So concept of e-cash ledger becomes important. But how to make payment in GST regime, we are going to learn today. So before starting with, I would like to run through some of the provision which are important. If we go to section 49, it talks about payment of tax, interest, penalty, fees or any other amount. Apart from e-liability, there may be interest payment, there may be penalty payment, there may be other payment as well. So section 49 talks about payment of tax, interest, penalty and other fees. Section 50 talks about interest on delayed payment of GST in GST regime. So in case we delay in payment of GST after due date, then we have to pay along with interest, and rate of interest prescribed is 18% per annum to be calculated from due date of payment to actual date of payment. So section 50 talks about 18% rate of interest per annum applicable, and it would be 24% per annum applicable when we have taken
undue credit which is otherwise not available, or we are reducing our output liability undue, then rate of interest would be 24% per annum. Section 51 talks about TDS, tax deducted at source, specified transaction going to be liable for TDS to be deducted by contractee while releasing the payment to the contractor, and the amount specified a contract value exceeding 2.5 lakh rupees, and a specified contract would be liable for TDS deduction. But this TDS provision is postponed. It is not effective as yet and would be implemented from a date to be notified. Similarly, Section 52 TCS provision as applicable on e-commerce operator going to be applicable from a date to be notified. It is paused for the time being. Section 53 talks about transfer of input tax credit. It is all CGST Act 2017 provision. Similar provision applicable for IGST under Section 20. Same provision at par applicable for UTGST under Section 21 of UTGST Act, and you will find a similar provision in all respective state SGST Act provision. It is from Act provision perspective, and the specified rules: CGST Rule 2017, Rule 85 applicable for e-liability, 86 talks about e-credit, 87 talks about e-cash ledger, and 88 talks about identification number for each transaction. Then there is specified format prescribed for e-liability. There is a particular format GST PMT01 e-liability, and e-liability pertaining to IGST, CGST, SGST, UTGST and compensation cess, and maybe other amount, interest, penalty, fees or any other amount. PMT02 applicable for e-credit, and PMT05 is a e-cash ledger, and PMT06 would be the GST challan for making payment of GST in GST regime. So let's start with and try to understand how to make GST payment in GST regime. As we all know that for July month we have to file GSTR 3B by 20th August. So we have to make GST payment on or before 20th August for filing of our GSTR 3B, and normal return outward supply for July to be filed by 5th of September, GSTR 2 which is inward supply by 10th of September, and GSTR 3 consolidated to be filed by 15th of September, on or before 15th of September. But for July month we have to file GSTR 3B, and for filing GSTR 3B, importantly, we have to make GST payment, and this GST payment required only when I've got output liability, and after adjusting my input tax credit, if any liability left out, that need to be paid through e-cash ledger. So how to make payment in GST regime, we'll try to learn today. In this given scenario, what is the relevance of e-cash ledger and why e-cash ledger is required? In GST regime, as I clearly stated, we would be having our output liability ledger, which is called e-liability. We would be having e-credit, which is the input tax credit, and then we would be having e-cash ledger. This e-cash ledger will also be required for making payment of our e-liability, liability pertaining to IGST, CGST, SGST, UTGST, compensation cess or any other amount. So this e-cash ledger is going to be important. So how we can make payment in e-cash ledger? It can be with either or mode. E-mode. E-mode can be for internet banking or by debit card, credit card, or NEFT or RTGS, or over the counter. Per challan,
per tax period 10,000 rupees. So there are three specific modes prescribed for payment of GST, which would be credited to our e-cash ledger. So e-cash ledger is nothing but a e-wallet, as we are maintaining the money in our e-wallet. Once we make payment in e-cash ledger and credit it to e-cash ledger, that would be available for any taxpayer to use this e-cash ledger for discharging their output liability. Their output liability may be again IGST, CGST, SGST, UTGST or compensation cess. But as I stated, when you make payment and it is credited in e-cash ledger, it should be in a respective head, maybe IGST, CGST, SGST, UTGST, compensation cess or any other amount, interest, penalty, fee or any other amount. When you are depositing the money in respective head, you can use these respective head for discharging the respective head liability. This is the concept of e-cash ledger to be utilized in GST regime. As I have narrated that in GST regime, we got four modes which is going to be utilized. Now after having e-cash ledger, the next question will come, how to make payment in GST regime. For making GST, we have to go for challan. In pre-GST regime, we have said TR6 challan. We used to create TR6 challan and fill up the details and deposit with either or mode, either through internet banking, NEFT, RTGS or by check or by cash. But in GST regime, concept is changing. There will not be any concept of physical challan or manual challan. Challan need to be created through a system, and this challan going to be single challan, even though liability exists for multiple account like IGST, CGST, SGST, UTGST or compensation cess. So with one single challan, the all e-liability wherever exists can be paid with a single challan, and this challan need to be created from GST portal. So there will be e-challan concept in GST regime, and once challan is being created, we can make the payment with alternative method e-mode. E-mode again divided internet banking or debit card, credit card or NEFT, RTGS or cash payment. Once payment is being made, then whatever payment made is going to be credited in our e-cash ledger, and this e-cash ledger can be used for discharging my e-liability account head-wise as stated just while ago. Now we will try to understand GST payment flow in GST regime. GST पेमेंट करने के लिए हम कैसे प्रोसेस फॉलो करेंगे और फ्लो चार्ट हमारा क्या होगा। जब हम जीएसटी रिजीम में जीएसटी का पेमेंट करना चाहेंगे तो हमें सबसे पहले जीएसटी गवर्नमेंट पोर्टल पे जाना है gst.gov.in, फिर हमें क्रिएट चालान ऑप्शन में जाना पड़ेगा। हम चालान क्रिएट करेंगे। जब चालान क्रिएट करेंगे तो हम उसमें डिटेल्स डालेंगे कि हमें किस अकाउंट में जीएसटी का पेमेंट करना है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, कॉम्पेंसेशन सेस और एनी अदर अमाउंट, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस। जैसे हमने चालान क्रिएट कर लिया, फिर हमें मोड सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं। ई मोड, ई मोड में इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एनईएफटी, आरटीजीएस या ओवर द काउंटर। जैसे आपने मोड सेलेक्ट कर लिया, आपके पास ऑप्शन होगा, आप इस चालान को सेव करें या फिर चालान क्रिएट कर ले, जिसको हम जनरेट चालान कहेंगे। जब आप चालान जनरेट करेंगे तो एक सी पिन नंबर आ जाएगा। सी पिन नंबर का मतलब हुआ कि ये चालान आपका जनरेट हो गया और ये 15 दिन तक वैलिड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सी पिन जनरेटेड, यानी 15 दिन के अंदर आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। जहां चालान आपने सेव किया वहां आपके पास ऑप्शन होगा कि ऐसे चालान में अगर आप एडिट भी करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। तो ये टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होगा कि वो चाहे चालान को सेव करे या चालान को जनरेट कर ले। अब चालान का पेमेंट करना है, आपने ऑप्शन चूज किया है।
अगर आपने ई मोड ऑप्शन चूज किया है तो आप इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के जरिए पे करेंगे। पे कैसे करेंगे? आपको मेक पेमेंट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। मेक पेमेंट ऑप्शन से अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग चूज किया है तो वो आपको बैंक के गेटवे पे ले जाएगा। बैंक के गेटवे पे जाके आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो बैंक का यूजर आईडी पासवर्ड है, वो डालेंगे। जब आपने डाला, वो चालान की डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। आप देख लें कि जो आपने चालान में डिटेल्स डाली है, जो अमाउंट आपने भरा है, वो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो आप पेमेंट प्रोसेस कर दें। कंफर्म पेमेंट प्रोसेस जैसे ही आपने किया, वो सक्सेसफुली दिखाएगा पेमेंट, योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। एक सिन नंबर क्रिएट हो जाएगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। बैंक का ये चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर बैंक जीएसटी गवर्नमेंट साइट को इंटीमेट करेगी। जैसे ही बैंक ने सिन नंबर जीएसटी गवर्नमेंट साइट को इंटीमेट किया, ये जो अमाउंट आपने जमा किया था वो आपके ई कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। आपको दिखेगा कि डेट ऑफ डिपॉजिट आपका आ गया। नाउ यू कैन यूज दिस ई कैश लेजर क्रेडिट बैलेंस फॉर पेमेंट ऑफ योर लाइबिलिटी। तो जिस दिन आप इसे पेमेंट करना चाहेंगे, आपको पेमेंट स्पेसिफिकली ट्रिगर करनी पड़ेगी, यानी पेमेंट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो आपके ई क्रेडिट लेजर में खड़ा होगा। जैसा मैंने आपको बताया, आपको रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग हेड के साथ ही एडजस्टमेंट मिलेगा। यानी अगर आपने आईजीएसटी में जमा किया है तो आप आईजीएसटी पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपने सीजीएसटी में जमा किया है तो सीजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप उसे पेमेंट के लिए प्रोसेस करेंगे, जिस दिन उस पेमेंट अकाउंट को हिट करेगा, उसको हम डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। जीएसटी रजीम में उसको हम डेट मानेंगे कि इस दिन पेमेंट हुआ है। तो ऐसे कई केस भी आपके सामने आएंगे कि ई कैश लेजर में आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, क्या लास्ट डेट में, या आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। जीएसटी रजीम में ई कैश लेजर एक ई वॉलेट है, आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। आपने जैसे ही ई कैश लेजर में जमा कराया, वो आपके ई कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा और आपके ई वॉलेट की तरह दिखेगा। जब भी आप इसे यूटिलाइज करना चाहें, यूटिलाइज कीजिए। जब आप यूटिलाइज करेंगे तभी ये डिपॉजिट अकाउंट पेमेंट अकाउंट में नॉक ऑफ होगा। और जिस दिन आपने पेमेंट के लिए अप्रोप्रिएट किया, उसी दिन डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। तो यानी दो डेट दिखेंगी, डेट ऑफ डिपॉजिट when e-cash ledger getting e-credited, that is not date of payment. Date of payment will be when this credit e-cash ledger is being used for the payment of GST. जब आप यूज करेंगे तो आपका e-cash ledger डेबिट होगा, उसको हम डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। तो सारा प्रोसेस फ्लो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि जीएसटी में आप चालान कैसे जनरेट करेंगे, उसका पेमेंट कैसे होगा। जब आपने पेमेंट कर दिया, वो दिखेगा कैसे आपको, आप कैसे ये सारे ट्रांजैक्शन को एक्सेस करेंगे। सो बिफोर आई मूव टू दैट, अब हमें समझना पड़ेगा कि जीएसटी रजीम में हमें चालान क्रिएट करना है। चालान बहुत इंपॉर्टेंट है। और चालान क्रिएट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आप जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे, चालान क्रिएट करेंगे और आप पेमेंट कर सकते हैं, जितना भी आप पेमेंट करना चाहें, जो आपके ई कैश लेजर में क्रेडिट होगा। तो चलिए अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि जीएसटी रजीम में आप चालान कैसे क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले गवर्नमेंट पोर्टल पे जाएंगे, www.gst.gov.in पे जाएंगे। जैसे ही आप इस पोर्टल पे गए, आपके पास टैब आएंगे जिसमें आपको दिख रहा होगा डैशबोर्ड, सर्विस, आप देख पा रहे हैं। तो सर्विस वाला टैब आपने चूज करना है। जब सर्विस वाले टैब में जाएंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएंगे तो आपके पास देखिए कई ऑप्शंस आ रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन, लेजर, रिटर्न, पेमेंट। आपको पेमेंट चूज करना है। आपने जैसे ही पेमेंट चूज किया, आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव ऑप्शन और आ रहे हैं, क्रिएट चालान, माई सेफ चालान एंड चालान हिस्ट्री। सो हमें चालान क्रिएट करना है, तो माई क्रिएट चालान को हम सेलेक्ट करेंगे। माई सेफ चालान क्या होगा? जब चालान आपने
क्रिएट कर लिया होगा और सेव कर लिया होगा तो माई सेव चालान में दिखेगा। और चालान हिस्ट्री में क्या दिखेगा? अगर सी पिन के जरिए जब आपने चालान जनरेट कर लिया और सी पिन जनरेट हो गया तो वो चालान हिस्ट्री में दिख रहा होगा जो 15 दिन के लिए वैलिड होगा। तो यहां पे जितने भी ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं इन सभी ऑप्शन का एक यूसेज है। अभी हम क्रिएट चालान में जाते हैं। अब मैं क्रिएट चालान में चला गया। जब मैं क्रिएट चालान में गया तो मेरे पास ये टेबल आएगी। इस टेबल में मुझे अपना अमाउंट डालना है कि मैं कितना अमाउंट पे करना चाहता हूं, चाहे वो IGST अकाउंट पे हो, CGST अकाउंट पे हो, SGST पे हो या UTGST पे हो या कॉम्पेंसेशन सेस पे हो या अदर अमाउंट, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फी और अदर अमाउंट। आप अमाउंट फील्ड डाल दें। जैसे ही आपने अमाउंट डाला वो ऑटो कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट ले आएगा। जब टोटल अमाउंट आ गया फिर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं। ई मोड, अगर ई मोड करेंगे तो दो ऑप्शन और आएंगे आपके पास। आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर आप NEFT RTGS का रूट फॉलो करना चाहते हैं या ओवर द काउंटर। तो हम ये प्रोसेस भी समझने की कोशिश करेंगे। हमने ऑप्शन चूज कर लिया पेमेंट का कि हम किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आएगा या हम इस चालान को सेव कर लें। अगर हम सेव करते हैं तो मेरे पास ये सेव चालान माई सेव चालान में आएगा, जिसे आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर आप चालान जनरेट कर लीजिए। जैसे ही आपने जनरेट चालान ट्रिगर किया उसके साथ ही आपका चालान क्रिएट हो जाएगा एक सी पिन नंबर के साथ, जिसको हम कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहेंगे। जैसे ये चालान जनरेट हो गया आपके पास 15 दिन की वैलिडिटी होगी कि 15 दिन के अंदर आप इस चालान का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सी पिन जनरेट हो गया आप फिर उस चालान में कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर आप उस चालान में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको ये फ्रेश एक नया चालान क्रिएट करना पड़ेगा। एक बार सी पिन जनरेट होने के बाद इट इज नॉन एडिटेबल। सो ये आपने ध्यान रखना है। अब जब हमारा सी पिन जनरेट हो गया, चालान जनरेट हो गया, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसका पेमेंट करूं। तो पेमेंट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट। मेक पेमेंट में जब हम ट्रिगर करेंगे तो फिर हमारे पास मोड ऑफ पेमेंट, हमने जो मोड सेलेक्ट किया होगा, चाहे ई मोड, चाहे NEFT RTGS या ओवर द काउंटर। तो ये सारे प्रोसेस वन आफ्टर अनदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले हम ई मोड में जाते हैं। जब ई मोड में हम पेमेंट करते हैं तो ई मोड में हम पेमेंट कैसे करेंगे? तो एक प्रोसेस आपने ये समझना है। जब आपने चालान जनरेट कर लिया और आप चाहते हैं इस चालान का पेमेंट मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद करूं, जो पॉसिबल है क्योंकि 15 दिन की वैलिडिटी हमारे पास होगी, तो आप फिर से अपने gst.gov.in पोर्टल पे जाइए, लॉगिन कीजिए, सर्विस ऑप्शन में जाइए, पेमेंट ऑप्शन में जाइए और पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद अब आप उसका पेमेंट कीजिए चालान हिस्ट्री के जरिए। तो पेमेंट में जाने के बाद चालान हिस्ट्री पे आइए। चालान हिस्ट्री में जैसे ही आप पहुंचेंगे आपके पास ऑप्शन होगा, या आप सी पिन नंबर से आप सेलेक्ट कर लें कि वो चालान कौन सा है, या फिर डेट वाइज आप सर्च कर लें, आपके पास ऑप्शन है। तो आपने सी पिन नंबर डाला तो वो चालान आपके सामने आ जाएगा, वो चालान आपको दिख रहा होगा। जैसे ही वो चालान आपके पास, आपके सामने, आपकी स्क्रीन, आपके डैशबोर्ड पे आ गया, अब आप पेमेंट मोड जो आपने सेलेक्ट किया था, मान लीजिए आपने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया, तो नेट बैंकिंग मोड के जरिए आप इसे स्टार्ट करेंगे। नेट बैंकिंग पेमेंट करने के लिए वो आपको पहले कहेगा प्लीज सेलेक्ट ए बैंक, क्योंकि आप जब पेमेंट कर रहे होंगे तो थ्रू ऑथोराइज बैंक कर रहे होंगे, तो आपकी वो ऑथोराइज लिस्ट आ जाएगी जहां से आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस बैंक के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कैनरा बैंक के जरिए करना चाहते हैं, आप कैनरा बैंक को ट्रिगर कर देंगे। कैनरा बैंक को जैसे ही आपने ट्रिगर किया, आपको टर्म्स एंड कंडीशन का एक कॉलम आ रहा होगा, बॉक्स आ रहा होगा, आप वहां उसे टिक करेंगे, यस यू एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे ही आपने एग्री कर लिया, फिर आप मेक पेमेंट को टिक करेंगे। मेक पेमेंट करते ही
ये साइट आपको बैंक के पोर्टल पे ले जाएगी, नेट बैंकिंग पोर्टल पे ले जाएगी, और नेट बैंकिंग पोर्टल पे आपको अपनी बैंक की यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालनी है। जैसे ही आपने अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डाला, वो आपको चालान शो कर देगा। उस चालान में जो भी डिटेल्स आपने भरी होंगी टुवर्ड्स पेमेंट, वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। आप देख लें और आप अकॉर्डिंगली कंफर्म करते कि हाँ यही पेमेंट मुझे करना है, आप पेमेंट ट्रिगर कर दीजिए, पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट सक्सेसफुली डन, जो एक मैसेज आपके पास आता है वो आपके सामने आएगा। जैसे ये मैसेज आएगा, एक सिन नंबर क्रिएट हो जाएगा जिसको हम चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलेंगे। बैंक इस सिन नंबर को जीएसटी पोर्टल को इंटीमेट कर देगी, जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग जीएसटी में जाके हिट करेगा। यानी ये सिन नंबर आपके जीएसटी पे ट्रिगर करेगा। जैसे ट्रिगर करेगा, आपका ई कैश लेजर उतने अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। हो सकता है आपने 10,000 रुपए का आईजीएसटी का पेमेंट किया था और सिन नंबर जनरेट हुआ। जैसे ही जनरेट हुआ, आपका ई कैश लेजर आईजीएसटी अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड फॉर 10,000 रुपीज। नाउ ये आपके पास अवेलेबल ई वॉलेट है, ई बैलेंस है। whenever you want, you can use this e-cash IGST account for payment of IGST. So ये कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करना पड़ेगा। यानी मैंने आपको एक इंटरनेट बैंकिंग का प्रोसेस बताया। सिमिलरली आप जब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए करना चाहते हैं। जब करना चाहते तो फिर आपको गेटवे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस गेटवे से पेमेंट करना चाहते हैं। फिर आपके लिए यूजर आईडी पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, जो आपको कॉरस्पॉन्डिंग बैंक की यूजर आईडी पासवर्ड यूज करनी पड़ेगी। आपको चालान के डिटेल्स दिखेंगे। आप अगर कंफर्म करते हैं यस दिस चालान डिटेल्स इज करेक्ट, लेकिन हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगे कि आपने चालान में गलत अमाउंट डाल दिया या इतना पेमेंट आपको नहीं करना है, तो आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। बट डिस्कार्ड करने के केस में ये चालान 15 दिन की वैलिडिटी के साथ होगा। अगर 15 दिन तक आपने इसको पे नहीं किया तो ये चालान आपके लिए पर्ज हो जाएगा, यानी एक्सपायर्ड हो जाएगा। ऐसे केस में आपको ए फ्रेश चालान क्रिएट चालान के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। तो यानी मैंने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जब आपने पेमेंट कर दिया तो फिर आपके लिए आएगा एक मैसेज कि पेमेंट इज सक्सेसफुली बीइंग डन। जैसे कि एक सिन नंबर जनरेट होगा जो बैंक जीएसटी पोर्टल को इंटीमेट करेगी, जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग जीएसटी में आपके जीएसटी आइडेंटिटी जो नंबर होगा उसके ई कैश लेजर में जाके क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी जिस अकाउंट में आपने पेमेंट करना चाहा था, मान लीजिए इस केस में सीजीएसटी में आपने करना चाहा था, तो उतना ही अमाउंट आपके सीजीएसटी ई कैश लेजर में क्रेडिट हो चुका होगा। अब आप इसको यूज कर सकते हैं जब भी आप चाहें, whenever you want. So you can use this e-wallet of CGST for payment of CGST liability as and when you want. जिस दिन आप इसे यूज करेंगे उस दिन डेट ऑफ पेमेंट ऑफ CGST माना जाएगा। सो मैंने आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट बताया। उसके बाद आप एक ऑप्शन NEFT RTGS, ये ऐसा मोड है जिसमें आप किसी भी बैंक के जरिए NEFT और RTGS कर सकते हैं। बट NEFT और RTGS के केस में आपका एक मैंडेट फॉर्म जनरेट होगा सिस्टम से, जीएसटी पोर्टल से। आपको इस मैंडेट फॉर्म को लेना पड़ेगा और मैंडेट फॉर्म को आपको अपनी बैंक, जिस बैंक के जरिए आप पेमेंट करना चाहते हैं, वहां सबमिट करना पड़ेगा आपको। फिर आप NEFT RTGS के जरिए पेमेंट कीजिए। पेमेंट करते ही सिन नंबर क्रिएट होगा जो बैंक जीएसटी पोर्टल में इंटीमेट करेगी, और इंटीमेट करने के साथ साथ आपके ई कैश लेजर में उतना अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा विच इज अवेलेबल फॉर द पेमेंट। एंड लास्ट एक मोड हो गया ओवर द काउंटर। सिमिलरली जब आप ओवर द काउंटर पेमेंट करना चाहेंगे, ये SME और MSME सेक्टर को माइंड में रखते हुए है। ओवर द काउंटर पेमेंट में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो हमें ध्यान रखना है, ओवर द काउंटर पेमेंट 10,000 रुपीज per challan per tax period. This is the limitation. Otherwise over the counter payment specific cases हैं
जिसमें गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि ओवर द काउंटर ऐसे कौन से एसएससी हैं जो पे कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल ट्रांजेक्शन ओवर द काउंटर 10,000 रुपीज पर चालान पर टैक्स पीरियड। ओवर द काउंटर के लिए जैसे ही आपने अपना चालान जनरेट कर लिया, आपका सी पिन जनरेट हो गया, आप उस चालान का प्रिंट आउट लेंगे। उस प्रिंट आउट को लेके आप अपने बैंक में जाएंगे। उस बैंक में आइदर बाय कैश और बाय चेक और बाय डिमांड ड्राफ्ट आप पेमेंट करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा, बैंक सिन नंबर जनरेट करेगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे जनरेट करेगा, ऑटो बैकएंड से इंटीमेट कर देगा जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग जीएसटी नंबर में ई कैश लेजर में उतना अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब क्रेडिट हो गया, नाउ इट्स अवेलेबल फॉर यू टू एडजस्ट टू मेक पेमेंट टुवर्ड्स योर जीएसटी लायबिलिटी। सो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके किस रेस्पेक्टिव अकाउंट हेड में, आईजीएसटी में है तो आईजीएसटी में ही आप पेमेंट कर पाएंगे। ये जो फंडा मैंने आपको बताया, सेम फंडा गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर ऑल पेमेंट इन जीएसटी रेजीम। अब मैंने यह सारी पार्ट आपको बता दिया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे भी होंगे जो हमें माइंड में रखने पड़ेंगे। जैसे ही पेमेंट हुआ तो आपके लिए एक जीएसटी पेमेंट रिसीट भी जनरेट होगी जो आप जीएसटी पोर्टल पे देख पाएंगे। उसके अलावा आप अपना ई कैश लेजर कैसे व्यू करेंगे। ई कैश लेजर मैंने आपको बताया किस फॉर्म में होगा, जीएसटी पीएमटी 05 इस फॉर्मेट में होगा। आप किसी भी डेट पे, बिकॉज दिस इज लाइक ए रनिंग अकाउंट, रियल टाइम बेसिस, आप कभी भी अपने पोर्टल पे जाके अपने ई कैश लेजर को व्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कितना पेमेंट जो आपने किया। और मैंने आपको बताया कि आपको लास्ट डेट की जरूरत नहीं है, आप जब जितना चाहें जमा कर सकते हैं। वो ई वॉलेट की तरह आपके ई कैश लेजर में खड़ा होगा। यूटिलाइज करना आपके ऊपर है, जब भी आप यूटिलाइज करना चाहें। तो देखिए, मैंने आपको ई कैश लेजर का व्यू पार्ट दिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूं, देखिए 2 डेट हैं इसके अंदर, एक है डेट ऑफ डिपॉजिट और एक है रिपोर्टिंग डेट बाय द बैंक। रिपोर्टिंग डेट बाय द बैंक, कई बार क्या होगा कि आपने डिपॉजिट कर दिया और इस पर्टिकुलर स्लाइड को अगर आप देखें तो यहां दिख रहा है 26 जून 2017। मान लीजिए 26 जून को आपने जमा करा दिया, पर बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल फॉल्ट हो गई और उनने रिपोर्ट किया ऑन 28, मान लीजिए, जूम कर लीजिए, तो यानी इसमें पीरियड गैप आ गया। जब पीरियड गैप आ गया तो आपके ई कैश लेजर में तो तभी दिखेगा जब बैंक सिन नंबर क्रिएट करेगा, जीएसटी पोर्टल को इंटीमेट करेगा, पर गैप आने की वजह से आपके पास वो अमाउंट नहीं दिख रहा होगा जो आप यूटिलाइज करना चाहेंगे टुवर्ड्स योर जीएसटी पेमेंट। तो हो सकता है आपसे डिले हो जाए 1 दिन का, 2 दिन का। ऐसे केस में इंटरेस्ट और पेनाल्टी की भी लायबिलिटी आएगी। तो ये पर्टिकुलर ई कैश लेजर आपको एक इमीडिएट स्टेप्स है। आप बिल्कुल किसी भी अपने जुरिडिक्शनल ऑफिसर को दिखा सकते हैं, देखिए इस दिन मैंने डिपॉजिट किया था 26 जून को, बैंक ने रिपोर्ट किया है 28 जून को। इट्स अ फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ बैंक, सो यू आर बोनाफाइड। In that case, jurisdictional officer can waive off your interest and penalty because you are not having any mens rea. So there's a technical fault at the bank side to intimate SIN number to the GST portal and hence getting delayed to be credited in your e-cash ledger. This is what the e-cash ledger, और इसी e-cash ledger में जब आप पेमेंट के टुवर्ड्स एप्रोप्रिएट करेंगे, जो बैलेंस आ रहा है उसको आप पेमेंट से एडजस्ट करेंगे, उतने अमाउंट से आपका ई कैश लेजर कम होते जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी टैक्स पीरियड में आपने पेमेंट 100 रुपए कर दिए, ई कैश लेजर में जमा कराए 100 रुपए, बट आपने
पेमेंट के लिए सिर्फ 60 रुपए यूज करने हैं, 40 रुपए रह गए आपके पास, तो 40 रुपए आप चाहें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसका रिफंड भी ले सकते हैं, जिसको हम रिफंड ऑफ ई कैश कहेंगे। और इसके लिए कोई अलग से आपने एप्लीकेशन नहीं डालनी। जब आप GSTR3 भरेंगे बाय 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, आपने कॉलम टिक करना है रिफंड ऑफ ई कैश लेजर। जो एक्सेस बैलेंस आपका ई कैश लेजर में पड़ा होगा उसका रिफंड ऑटोमेटिक आएगा विद GSTR3। ये ऑप्शन भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिफंड में नहीं जाना चाहता और मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं, दैट ऑप्शन विल आल्सो बी अवेलेबल टू यू। सो ई कैश लेजर में अगर एक्सेस बैलेंस आपके पास पड़ा है, यू कैन टेक रिफंड automatically, and this automatic refund come with the filing of GSTR3 और उसमें आपने टिक करना है। ये मैंने ई कैश लेजर के ऊपर आपको बताया। अब सेफ चालान के ऊपर थोड़ा मैं टच करना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था कि आपके पास चालान सेव करने का भी ऑप्शन होगा। बिफोर जनरेटिंग चालान आप चाहे चालान को सेव कर सकते हैं, और सेफ चालान पर्पस आपके लिए कब सॉल्व करेगा। मान लीजिए आपने चालान भर लिया लेकिन आप चालान जनरेट नहीं करना चाहते क्योंकि आप थोड़ा डाउटफुल में हैं, या आपकी कैलकुलेशन आप चाहते हैं कि मैं कर लूं और करेक्ट फिगर पे आ जाऊं तभी मैं चालान जनरेट करूंगा, तो आप सेफ चालान कर लीजिए। ये सेफ चालान 7 डेज के लिए वैलिड होगा। आप कभी भी सेफ चालान ऑप्शन में जाइए, आपको सर्विस वाले टैब पे जाना है, पेमेंट पे जाना है, और पेमेंट पे जाते ही आप देखेंगे क्रिएट चालान, माई सेफ चालान एंड चालान हिस्ट्री। माई सेफ चालान पे जाएंगे तो वो सारे सेफ चालान आपको दिख जाएंगे। सेफ चालान आप खोलिए, आपके पास ऑप्शन होगा, आप चाहे उसे एडिट कर सकते हैं चाहे डिलीट कर सकते हैं, जो आपके राइट हैंड साइड में एक्शन में आ रहा है। एडिट करने का मतलब सेफ चालान में आप बदलाव कर सकते हैं, अमाउंट बदल सकते हैं, हेड वाइज आप अपना देख सकते हैं कि आपको किस कॉरस्पॉन्डिंग हेड में डालना है। आप चाहें तो सेफ चालान को डिलीट भी कर सकते हैं, बट विद 7 डेज वैलिडिटी। 7 डेज के बाद ये सेफ चालान ऑटोमेटिकली एक्सपायर कर जाएंगे। तो सेफ चालान का भी ऑप्शन मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप अपना पेमेंट ट्रैक करना चाहते हैं जीएसटी में कि आपका पेमेंट कैसे हुआ, कितना हुआ, किस तरीके से, तो आप चालान वाइज आपके पास सी पिन नंबर था, आप चालान वाइज अपना पेमेंट ट्रैक कर सकते हैं कि चालान वाइज आपका कितना पेमेंट प्रोसेस हो गया जो टुवर्ड्स योर लायबिलिटी एडजस्ट हो गया। तो ये सारे प्रोसेस जो मैंने आपको बताए जीएसटी में, आप पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट आपके ई कैश लेजर में कैसे क्रेडिट होगा। जब आप पेमेंट करेंगे ई कैश लेजर से तो वो डेबिट होगा, जब डेबिट होगा तब उसे डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। बट इंपॉर्टेंटली हम चालान कैसे क्रिएट करेंगे, चालान क्रिएट करने के बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जनरेट करने की होगी। सी पिन जनरेट होगा, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। चालान क्रिएट होने के बाद आप मोड ऑफ पेमेंट जो आपने सेलेक्ट किया होगा, चाहे वो ई मोड हो, ई मोड में 2 ऑप्शन अगेन, इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर आपके पास ऑप्शन होगा एनईएफटी, आरटीजीएस या ओवर द काउंटर। उस पेमेंट मोड करने के बाद आपके अकाउंट में जब सिन नंबर जनरेट हो जाएगा तो बैंक सिन नंबर जनरेट करेगी जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे इंटीमेट करते ही आपका ई कैश लेजर क्रेडिट हो जाएगा। देन यू कैन यूज दिस ई कैश लेजर फॉर पेमेंट। जहां भी एक्सेस बैलेंस आपका ई कैश लेजर में रह गया, आप रिफंड लेना चाहें तो वो ऑटोमेटिक रिफंड भी आपको मिलेगा, और वो ऑटोमेटिक रिफंड थ्रू योर GSTR3 आपको मिलेगा। ये सारे प्रोसेस हमें अपने माइंड में रखने हैं, क्योंकि जीएसटी रेजीम में जीएसटी का जो पेमेंट होना है वो थ्रू ई मोड, आपके चालान जीएसटी पोर्टल से जनरेट होंगे, यानी फिजिकल चालान का कॉन्सेप्ट जीएसटी में नहीं होगा। तो हमें ये सारे प्रोसेस समझने पड़ेंगे। अब पहली ड्यू डेट 20th अगस्त, GSTR3B इन लिeu ऑफ GSTR3 ड्यू है, उसके लिए हमें पेमेंट करना है, और पेमेंट ऑन और बिफोर करना है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया
तो जो आपकी GSTR 3B होगी उसको इनवैलिड किया जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा. सो पेमेंट टू बी मेड ऑन or बिफोर फाइलिंग ऑफ GSTR 3B, ये कॉन्सेप्ट GST में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. हमने कोशिश की कि GST पेमेंट आप GST रिजीम में कैसे करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. Before I sum up, I can tell you there are three ledger important ledger. E-liability ledger, जहां मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, चाहे वो IGST, CGST, SGST, UTGST, compensation cess या any other amount, interest, penalty, fees और any other amount. Similarly आपका ई क्रेडिट लेजर होगा, यानी जो आपने परचेज की होंगी, जो आपके सप्लायर ने आपको सप्लाई की होंगी, वो आपके GSTR 2A में आ रही होंगी, जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो GSTR 2 फाइनल होगा, ई क्रेडिट लेजर आपका जनरेट होगा. अगेन हेड वाइज IGST, CGST, SGST, UTGST, कॉम्पेंसेशन सेस. इसके अलावा ई कैश लेजर, जिसके बारे में आज हमने डिटेल में डिस्कस किया, कैन बी यूज, यानी आपके पास दो हेड होंगे, ई क्रेडिट एंड ई कैश लेजर, फॉर पेमेंट ऑफ योर लाइबिलिटी. This is what the concept we are going to follow in GST regime. We have tried to make it simple for all of you, and with this initiative we want that we should learn together GST regime in a easy language. We are trying to make GST easy for all of us together. So with this process we are summing up today's presentation. Thanks for watching. In case you want to give any feedback and suggestion, I will appreciate. You can write back to us on our email ID info@a2jtaxcorp.com. With this initiative, look forward to see you in our next capsule, and that would be on GST return, GSTR 1, 2 and 3. In case you want to have anything else from our side, please write back to us. We'll try to take your suggestion for better improvisation. Thanks for watching. Thank you very much. Take care of yourself.